Hello, everyone. This is Fahad Pervez, Director, Quality Assurance Department. I'm fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, fellow member of Pakistan Institute of Public Finance Accountants, and associate member of Institute of Chartered Accountants of England and Wales. Today, I'll be delivering how to carry out QCR. The outline is Introduction to QCR, QCR process, which is further divided into before QCR visit, during QCR visit, and after QCR visit. And lastly, the conclusion, or takeaway would be in the form of prerequisites for for the reviewer. First, before proceeding towards introduction to QCR, a bit background I would like to share. A very important rule that I would like to establish, and that is just like in the previous presentation, the question and answer session would be taken at the end. So I would request that you have got a place appearing in the tab as Q&A. You can share your Q&As over there, and I'll be responding to those at the end of the presentation. Coming back towards the presentation, introduction to QCR, a little background. In 1987, the Council of the Institute established QCR committee to develop an independent QCR system for audit practices. In 2005, the committee was restructured into Quality Assurance Board. The QCR program was first issued in 2003, which was later revised in 2006, 2009, 2015, 2019, and lastly in 2024. The revised QCR framework of 2024 is effective from October 1st, 2024. The objectives, again, it is important to understand the objectives. The objective of QCR is to enhance the quality of auditors' report and credibility of accountancy profession. Further, it can be redivided. You can see applicable ISA's relevant ethical requirements and legal and regulatory requirements applicable in Pakistan, whether the audit has been conducted in compliance with all these, whether a system of quality had been in place. Why QCR? The Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations 2019 require every company to appoint an external auditor, a firm which has been given a satisfactory rating under QCR program of ICAP and is registered with AOB established under SECP Act 1997. So the Listed Companies Regulation 2019 initially bound. Later, the program was further extended by SECP's SRO 1044 of 2015, which required non-listed companies of following categories: PICs, which are not listed; large size companies, the definition is given in third schedule of the Companies Act; and public interest and large size companies license formed under section 42 and 43 of the ordinance. So why QCR rating? This is from the statutory and legal prospect, but in previous slide I have already shared that the reason behind introducing a review program was to enhance the quality of auditors report and credibility of the accountancy profession. A brief about QAP. You would be going through various jargons. QAD stands for Quality Assurance Department, which functionally reports to QAB, Quality Assurance Board. These individuals are different from ICAP management. They're not a part of ICAP Council. So to ensure independence, the framework covers these aspects. The review findings are presented after coding to the QAB to avoid all sort of conflict of interest. So the person sitting in the meeting, although they are given the opportunity, the honorable members inform if they have any sort of interest in any sort of firm. So they're not made part of that particular agenda item. And to further ensure that there are no conflicts, the coding is done in a manner that the board members in the meeting are not aware of which firms it is and which audit engagement are they going through.
So they are coded like ABC, XYZ, or firm code 1275, something like that. The QAB has 9 members. The composition is 9 members. The nominations, three from SECP, two from State Bank of Pakistan, one from PSX, and three are nominated by the Council of the Institute. The QAB has perpetual succession, frequency minimum 6 meetings, but presently they are meeting with more frequently. More frequently, I would say around one meeting is carried out bare minimum in a month. The quorum of the meeting is 5 members. Next, I would move. That was a brief introduction about QCR, QAT, and QAP. Moving towards the QCR process, what actions needs to be taken by the QCR reviewer before the QCR visit? And in the director QAT selects reviewer meeting the criteria according to QCR framework, an individual hired by QAT to conduct QCR who has post qualification audit experience of at least 2 years and has not been in past employment of the firm for at least the past 2 years and is not currently associated with any firm in any capacity whatsoever. This definition has been updated in QCR Framework 2024, and this would be applicable with effect from 1st October 2024. The select the selected reviewer shall maintain independence and objectivity throughout the QCR process, and formal undertaking is taken from the reviewer. Next is before visiting the selection of the audit engagements, the firm submits list of audit engagements in the format. The format is available on ICAP's website. The list received is shared with the reviewer. The reviewer is responsible to suggest the audit engagements based on risk-based criteria. The reviewer shall obtain the approval of engagement selection from head HOD slash director QAD before the visit commencement. Obviously, it's a sort of participative management. The reviewer suggests and seek approval. Thereafter, before field visit commencement, the date and time is agreed with firm's relevant engagement partner. Now, during the visit, the process that starts the QCR commencement, at the inception of QCR visit, the reviewer will hold a meeting with the relevant firm's engagement partner where he'll convey the selection for QCR. Now, this is very important, not to be conveyed earlier, because the if it is conveyed earlier, there is a risk that the firm may get involved or may get engaged in preparing working papers and something like that. I'm not saying that it is carried out everywhere, but to avoid all sort of risk, the pattern that the reviewer follow is the practice that the with time that has been established with the by the reviewer is that they do not convey the engagement selections prior to the visit. In initial meeting, the reviewer will seek industry understanding and knowledge of particular audit engagement that has been selected for review from the relevant engagement partner. The reviewer will request that the EP to provide complete audit documentation files. ये बड़ा अहम है. रिव्यूअर जब कमेंट्स करता है, क्यूरीज रेज करना शुरू करता है एट लेटर स्टेज, तो पता चलता है कि भाई ये फाइल या ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दूसरे कमरे में रह गए, या इसकी फाइल जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट में पड़ी थी, या समथिंग लाइक दैट, टू अवॉइड के द रिस्क और द फियर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ ड्यूरिंग विजिट बना ली जाए. रिव्यूअर कमेंसमेंट पे ही रिक्वेस्ट कर लेता है
कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसको स्टार्ट में ही सारी कंप्लीट दे दी जाए, whether these are in soft copy or in hard copy. The reviewer, after obtaining the audit engagements, will review the procedures. इसके हवाले से various checklists हैं जो कि later stage पे मैं share कर रहा हूँगा. The overall objective has already been shared. ISAs and IFRS की compliance को review कर रहा होगा. If IFRS are not applicable for MSE and SSE, we have other frameworks applicable. IFRS for SMEs is applicable on MSEs, and AFRS for SSEs is applicable on small sized entities. So the reviewer will review the available audit engagement in line with applicable ISAs and IFRS slash IFRS for SMEs slash AFRS for SSEs, whichever is applicable. I know there are some points that I've added in this particular presentation. These are some sort of tips, I would say, or some important aspects that can be taken care of by the reviewer during the QCR visit. Ineligibility of the firm to act as auditor. Reviewer needs to be very vigilant, as instances had been noted in past where the firm was not eligible to be appointed as auditor, whereas it issued audit report for the year. The requirement is covered in Code of Ethics and CCG. For example, firm audited PIC slash large size entity, though it did not have a QCR rating. We've already covered in the presentation at the start that the requirement of CCG and the requirement of SRO 1044 requiring the auditor, requiring the company to appoint a QCR rated auditor. Now, recently, AOB has Audit Oversight Board has issued various orders where it has pointed out that the firm was not in AOB register. The firm was not having QCR rating. However, it issued audit report for public interest companies. So it is something that the reviewer needs to recheck whenever he commences the review. Engagement partner rotation, the department has noted instances that EP was not eligible to be appointed as auditor. However, EP signed audit report for the year. The requirement is covered in listed companies code of corporate governance and code of ethics. The example is firm audited PIC for more than 5 years. There are companies that needs to rotate their auditor after 5 years, such as banks needs to rotate, and likewise in financial sectors there are other companies that are bound by the laws to rotate the auditor. But for non-financial sectors, for manufacturing concerns, the bare minimum requirement is that the company at least ask the firm to rotate the engagement partner. So the instances were noted depicting non-compliance. Next is cooling off period. Again, the requirement is stated in clause R 540.11 of the ICAP Code of Ethics for Chartered Accountants, that the cooling off period needs to be carefully reviewed by the reviewer. Audit report is a key deliverable of the auditor, and instances were noted where multiple qualifications were given in auditor's report, but the potential impact was not assessed with respect to pervasiveness. Now, if the potential impact is not assessed, then the reviewer has raised a query, something like the why auditor did not express an adverse opinion or the disclaimer of opinion instead of expressing modification, instead of expressing qualifications. Now, auditor has added emphasis of the matter paragraph in auditor report, and the matter highlighted was not evaluated for modification in audit report. और एम्फेसिस ऑफ द मैटर ऑडिट रिपोर्ट में डाल दिया गया है, ऑल्दो उसकी जब लैंग्वेज को रीड किया जाता है तो पता चलता है कि इसके ऊपर क्वालिफिकेशन एक्सप्रेस होनी चाहिए थी. मैं आपसे इंस्टेंस शेयर कर लेता हूँ कि जैसे ग्रेचुटी या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की रिकग्निशन, इसको हम आगे भी देख रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट है कि जहाँ 50 से ज़्यादा स्टाफ बढ़ जाए
तो वहाँ पर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्रिएट करना है. द मैटर वाज स्टेटेड इन एम्फेसिस ऑफ द मैटर पैराग्राफ स्टेटिंग दैट द company has not recognized post employment benefit. Now it is an area where there is a difference of opinion between the auditor and the company management, and the requirement was pertaining to law. So auditors should have assessed and considered the matter by by including modification in auditor report instead of emphasizing on the matter. Further instances were noted where implication of non-compliance with laws was not evaluated while expressing opinion. Instances were noted where sufficient and appropriate audit evidence was not available on areas not included in basis of adverse opinion. We are moving back to the part of QCR process, but reviewer needs to be careful during a QCR visit, or what are various aspects that can be helpful to the reviewer in QCR visit. The instances were noted where sufficient and appropriate audit evidence was not available on areas not included in basis of adverse opinion. जहाँ पे ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, वहाँ पे बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन के पैराग्राफ्स दिए हुए हैं. अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को जब रिव्यूअर देख रहा है तो वो एरियाज जो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में शामिल नहीं हैं, उन एरियाज पे भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होनी चाहिए. बट contrary to that, audit document instances were noted where such documentation was not available. Next is other matter paragraph was included instead of emphasis of the matter paragraph. Appropriate wording was not used when the prior year financial statements were audited by another auditor. Material uncertainty relating to going concern instances were noted where the financial statements were prepared by using non-going concern basis of accounting. However, auditor included material uncertainty relating to going concern paragraph. We all know ICAP has also issued guideline on a non-going concern basis. So, जहाँ the company management can choose to prepare non-going concern basis, but once the company management has chosen the non-going concern basis of accounting, then material expressing material uncertainty relating to going concern doesn't coincide with the requirements. Matter duplicated by including material uncertainty in CAM as well. वो मैटर जो कैम में है वो मटेरियल अनसर्टेनिटी में नहीं आना चाहिए, और लाइकवाइज अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस की हुई है ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड की हुई है, तो उस मैटर को कैम में शामिल नहीं करना चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो. Information other than financial statements and auditors report their own instances were noted where audit report includes a paragraph on other information. However, annual report comprises of only financial statements. Now, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, कि ऐसे इंस्टांस भी मिले कि ऑडिट रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा शामिल किया गया, लेकिन जब एनुअल रिपोर्ट देखी गई तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही थे. एंड contrary to that, other information paragraph was not included in auditor report, despite the fact that the company included director's report and annual report. डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन का पार्ट है. सो डायरेक्टर रिपोर्ट की मौजूदगी में अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ ना इंक्लूड करना ऑडिटर रिपोर्ट में, दैट वाज क्वेश्चन बाय द रिव्यूअर. वेरी क्विकली मैं थोड़े से एरियाज भी हमारी टीम ने आइडेंटिफाई किए थे कुछ, कि क्या प्रोसीजर्स रिव्यूअर रिव्यू कर रहा होता है. ऑब्वियसली फर्म की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये मिलने चाहिए, जैसे पीपी नॉन करंट एसेट्स में ग्रुप किया हुआ है. द रिव्यूअर shall perform different procedures to check compliance of IAS 16, including reviewing verification of opening balances from last year audited accounts, recalculation of depreciation, experts revaluation report if applicable. पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें इस तरह के नज़र आते हैं जहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे क्या एक्सपर्ट जो है वो पीबीए पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन के पैनल में शामिल है, क्या उसकी रिपोर्ट जो है उसको ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट किया है, या उसके एक्सट्रैक्ट्स को ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट किया है, और फिगर्स जो फाइनेंशियल्स में आ रहे हैं वो वहाँ से आ रहे हैं. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, स्टैंडर्ड जो है वो
3 to 5 years की फ्रीक्वेंसी कहता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं तो फिर उसका रीवैल्यूएशन जल्दी भी हो सकती है। So again, it was included considering it very important. The reviewer reviews the vouching of additions and disposals and associated gains and loss, and review the disclosure as per IS 16, and the compliance of fourth and fifth schedule of Companies Act is also reviewed. In trade receivables, the reviewer shall perform different procedures to review whether the substantive procedures were performed on selected samples. Uh, अगर external confirmations ली गई हैं, उनमें से अगर कुछ का जवाब आया है और कुछ का जवाब नहीं आया, तो फिर जिनका जवाब नहीं आया उन पे further procedures, audit procedures perform करने हैं, alternate audit procedures perform करने हैं instead। आया वो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स मूवमेंट वेरिफिकेशन की शक्ल में हो सकते हैं, सब्सीक्वेंट रिसीट्स का रिव्यू हो सकता है, और फाइनली इनवाइस टेस्टिंग भी की जा सकती है। बट कंसिडरिंग के सैम्पलिंग विद इन सैम्पलिंग का कंसेप्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सो ऑडिटर ने जो भी सिलेक्शन की अप्रोच अडॉप्ट की है, उसके मुताबिक सिलेक्शन अगर कर ली है तो उस सैंपल पे फिर ऑडिट प्रोसीजर्स होने चाहिए। The aging analysis and ECL assessment was adequately performed. Again, auditor ने ये किया, क्या documentation की, और इसको हमारा reviewer देख रहा होगा considering the requirements of IFRS 9. Deferred taxation, another area where which is very I would say कि एक ऐसा एरिया है जहाँ कॉमन डेफिशिएंसीज नज़र आती हैं, कम्प्लेक्स एरिया समझा जाता है, और एट टाइम्स हमारी टीम ने डिफरेंट जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ डेफिशिएंसीज नोट की, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि deferred tax liability was not recognized in the financial statements. Moreover, there was no documentation in working paper files to evidence the impact of such non-recognition. यानी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी एज पर द रिक्वायरमेंट्स, लेकिन जब वो रिकॉग्नाइज नहीं की गई तो कोई डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद नहीं है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कुछ इस तरह के स्टांसेस निकल आएँ कि जहाँ पे डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज करने की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे कि अगर इनकम स्ट्रीम ही एग्जम्प्ट है या इनकम टैक्स लॉज के मुताबिक एग्जम्पशन ली हुई है, पूरा साल एग्जम्पशन ली है और अगले साल की भी नज़र आ रहा है कि एग्जम्पशन ले लेंगे। बट अगेन ऑडिटर नीड्स टू डॉक्यूमेंट एंड ओवर रिव्यूअर क्वेश्चंस कि भाई आपने ये कंक्लूजन, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं तो इससे एसोसिएटेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखा दें। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट वाज रिकॉग्नाइज्ड दो नो फ्यूचर फोरकास्ट वर अवेलेबल स्लैश डॉक्यूमेंटेड। इसमें मैं ऐड भी कर दूं कि बाज़ औक़ात फोरकास्ट अगर डॉक्यूमेंट भी की होती हैं तो उसके ऊपर कोई ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं किए होते। लेट्स से करंट ईयर जो है वो बड़ा टफ सा ईयर नज़र आ रहा है और पास्ट पैटर्न भी नज़र आ रहा है कि कंपनी जो है वो लॉसेस में चल रही है या बिल्कुल बेयर मिनिमम प्रॉफिट्स कर रही है, और फ्यूचर फोरकास्ट जो हैं वो ह्यूज नंबर्स की लगा दी गई हैं। अब कैसे वो एकदम से कंपनी इस तरह का ट्विस्ट लेके फोरकास्ट जो हैं वो दिखा के डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर ले, इस चीज़ को ऑडिटर ने क्वेश्चन नहीं किया होता या इससे एसोसिएटेड एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन नहीं रिटेन की होती। वो एजम्पशंस जो सेल्स में एट टाइम्स 300 टाइम्स इजाफा दिखा रही होती हैं, उन एजम्पशंस को ऑडिटर ने टेस्ट नहीं किया होता, वेयर एज रिव्यूअर इनसे एसोसिएटेड इंक्वायरीज रेज कर रहा होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात एरर्स इन कैलकुलेशंस नज़र आती हैं। डेफर्ड टैक्स जो है वो लैंड पे कंप्यूट किया हुआ था। लैंड जो है वो ऑल नो कि ये एक परमानेंट डिफरेंस इसके ऊपर आता है, लेकिन उसके ऊपर हमारी टीम ने नोट किया कि डेफर्ड टैक्स की इम्प्लीकेशन ली हुई थी। Tax return was neither available nor tax base was matching in tax depreciation schedule, क्योंकि जहाँ पे भी डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन नज़र आ रही होगी वहाँ पे अकाउंटिंग बेस और टैक्स बेस नज़र आ रही होगी, तो टैक्स बेस से एसोसिएटेड इंक्वायरी हमारा रिव्यूअर कर रहा होता है। नेक्स्ट इज़ ग्रेचुटी। इस पे मैंने थोड़ी सी कंप्लायंस विद द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस पे बात की है, ऑडिट रिपोर्ट पे के ऊपर बात करते हुए। लाइकवाइज रिव्यूअर असेस करेगा कि जिन साहब को अपॉइंट किया गया, क्या उन एक्सपर्ट की असेसमेंट जो है वो ठीक की गई, क्या बैलेंस शीट डेट पे जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एम्प्लॉयज़ डिस्क्लोज किए गए हैं वो मैच कर रहे हैं एक्चुरियल वैल्यूएशन में। अगर फ़र्क है तो क्या ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट किया है कि ये फ़र्क जो है
किन कौन से स्टाफ का है, क्या टेम्परेरी स्टाफ है या ऐसी हायरिंग है जिनको अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए। ऑडिटर के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस चीज़ को कवर करेगी और रिव्यूअर उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देख के इवैल्यूएट करेगा। कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ऐसा तो नहीं है कि एक्चुरियल वैल्यूएशन करते हुए मैनेजमेंट ने सिर्फ मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेता हूँ कि 100 एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी एक्चुरियल वैल्यूएशन करवा ली है, व्हेयरएज़ कंपनी के एम्प्लॉइज़ जो डिस्क्लोज़ किए हुए हैं वो मोर देन 1000 है। और इनमें बेशतर मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चल रहा हो कि इनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनको कि 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और वो परमानेंट एम्प्लॉयी हैं, लेकिन उनकी अ, प्रोविजन फॉर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्रिएट नहीं की गई। रेवेन्यू इज अनदर क्रिटिकल एरिया। इस एरिया पे क्या टीओसीज परफॉर्म हुए हैं, द रिव्यूअर शेल परफॉर्म डिफरेंट प्रोसीजर्स टू रिव्यू documentation of revenue recognition policies, walkthroughs, identification and documentation of revenue risks, the assessment of control environment for revenue, analytical procedures and investigation of fluctuations, testing and documentation of revenue transactions and cut-off procedures, customer confirmation and analysis of journal entries. So overall, the reviewer follow the approach covering whether these areas have been adequately documented and are in compliance with the requirements of relevant standards and ISAs. I'll not go in further detail regarding administrative expenses, the accounting policies for recording expenses, and identification of risk of misstatement, assessment of control over authorization, analytical procedures performed. Basically, auditor की इन एरिया से एसोसिएटेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यूअर रिव्यू कर रहा होता है, बट ये कुछ एरियाज आइडेंटिफाई जो हमारी टीम ने किए हैं, इसके अलावा भी सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड अदर एरियाज भी हो सकते हैं जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं। सो उनको भी गेज करना या उनका भी रिव्यू करना उन ऑडिट रिव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। रिसोर्सेज की बात करूंगा कुछ एरियाज बताने के बाद। द रिव्यूअर शैल कंप्लीट द फॉलोइंग चेकलिस्ट ड्यूरिंग फील्ड विजिट ऑफ ऑडिट फर्म्स फॉर QCR. Engagement review checklist is available at ICAP's website as well as the checklist for system of quality control review. There are additional audit programs in case of PICs that reviewer needs to fill up. Subject specific checklist for specialized industries. इस पे भी अगर लेट्स से अगर किसी कोई रिव्यूअर बैंक से रिलेटेड फाइल का रिव्यू कर रहा है, इंश्योरेंस से रिलेटेड फाइल का रिव्यू कर रहा है या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस द रिव्यूअर विल आल्सो बी फिलिंग द सब्जेक्ट स्पेसिफिक चेकलिस्ट फॉर स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज। आईएफआरएस डिस्क्लोजर चेकलिस्ट या एफएसआर चेकलिस्ट इसको भी फिल कर रहा है रिव्यूअर। फोर्थ फिफ्थ शेड्यूल चेकलिस्ट को भी फिल कर रहा है रिव्यूअर। ऑल दीज चेकलिस्ट जो हैं वो रिव्यूअर से शेयर की जाती हैं और रिव्यूअर इन पे फीडबैक आफ्टर क्यूसीआर विजिट शेयर कर रहा होता है। These are fairly very important and critical, considering that audit oversight board जिनका अभी इशफाक तौला साहब ने भी तस्करा किया, वो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा होता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं अगर आप लेट्स से QCR किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है तो उसकी बैक पे क्या चेकलिस्ट अवेलेबल हैं, क्या कंट्रोल पॉइंट्स हैं। सो दिस डॉक्यूमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। Compliance with laws, ये भी important है। The reviewer shall review audit documentation related compliance with laws such as Companies Act, Income Tax Ordinance, Sales Tax Act, provincial sales tax laws, provincial laws relating to WWF, provincial laws relating to WPPF, Industrial and Commercial Standing Employment Standing Orders Ordinance 1968, and industry specific, including but not limited to the following: Banking Companies Ordinance, Insurance Companies Ordinance, Prudential Regulation. So overall, reviewer को इनका नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि इनसे एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू कर सके और जहाँ पोटेंशियल इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जहाँ नॉन कंप्लायंस नज़र आ रही है, वो उसको फिर फर्म के साथ रेज़ कर सके।
यहाँ पे क्यूसीआर प्रोसेस ड्यूरिंग क्यूसीआर विजिट में इन तमाम कंप्लायंसेस को या कुछ हमने जो पास्ट के इंस्टांसेस भी शेयर किए वो जस्ट एक बैक एंड पे पिक्चर क्रिएट करने के लिए ही थे कि जब ये चीज़ें पॉइंट आउट हो जाती हैं तो द रिव्यूअर शैल प्रिपेयर the finding a document having review findings as well as a list of missing documents. Now list of missing documents is very important क्योंकि इस तरह भी ऑब्जर्व किया गया है पास्ट में कि बाज़ औक़ात रिव्यूअर को ड्यूरिंग क्यूसीआर विजिट कुछ चीज़ें नहीं मिली और उसने ऑब्जर्वेशन रेज़ कर दी कि लेट्स से एडिशन ऑफ पीपीई व्हिच वाज़ मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर वाज़ नो एसोसिएटेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और फर्म एट लेटर स्टेज इसको सबमिट करवा दे कि भाई ये तो मेरे पास मौजूद थी और रिव्यूअर से देखी नहीं गई या ये जो है वो सॉफ्ट कॉपी में मौजूद थी समथिंग लाइक दैट। तो रिव्यूअर वहाँ फील्ड विजिट कंक्लूड करने से पहले या फर्म उठने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर के साथ एक बड़ी डिटेल्ड मीटिंग करता है जिसमें अपनी सारी फाइंडिंग्स शेयर करता है और लिस्ट ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स देता है वहाँ पे कि अगर आप ये चीज़ें दिखा देंगे तो आई विल एक्सेप्ट एंड ड्रॉप द डेफिशिएंसी। ऑन द कंट्रेरी अगर ये लेटर स्टेज पे आप सबमिट करवाएँगे तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होगा और उस डिस्कशन की बेस पे फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर से फीडबैक लेके रिव्यूअर अपनी असेसमेंट को अप्लाई करता है। जहाँ ज़रूरी हो कोई डिफरिंग ओपिनियन नज़र आ रही है वहाँ सीनियर्स को एंगेज करता है, डायरेक्टर क्यूओडी से बात कर सकता है कि यहाँ डिफरिंग व्यूज़ आ रहे हैं और उस मुशावरत के बाद फिर फाइनल फाइंडिंग रिव्यू फाइंडिंग्स और लिस्ट ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स फर्म के साथ शेयर किए जा रहे होते हैं। Now, after QCR visit, QCR process में a draft report for QCR visit बनाई जाती है. Reviewer shall prepare a draft report including all deficiencies noted and submit the same to the director QAD for his feedback. The deficiencies must be drafted with sufficient and comprehensive detail of the facts available at the time of field visit. ये again substantiate होगा list of missing documents से जिसकी हमने पिछली slide में बात कर ली. Drafting is again it is not just the technical skills but good writing skills are also critical. Drafting skills जो हैं वो भी critical हैं. Drafting of deficiencies shall include potential financial impacts if any and a paragraph a reference of the applicable IFRSs, ISAs and local laws. सो उसमें जो भी रेफरेंस है चाहे वो जिस पैरे का भी रेफरेंस है, जिस स्टैंडर्ड का भी रेफरेंस है वो ऑब्जर्वेशन में या डेफिशिएंसी में कोट किया जाना चाहिए ताकि जिस जिस किसी को भी बताया जा रहा है वो फ्यूचर में उस चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को अच्छे से कैटर कर ले। After incorporating feedback of Director QAD, the report shall be shared with the firms for comments. इसके बाद the firm shall submit responses within 2 weeks of receipt of the draft report as per QCRF. यानी QCR फ्रेमवर्क में एक टाइमलाइन दी गई है जिसमें फर्म ने रिस्पॉन्स करना है. फर्म सबमिट करवाती है फॉलोइंग रिसीट ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द फर्म. द रिव्यूअर शैल एनालाइज ऑल कमेंट्स ऑफ ईपी and shall evaluate as to whether the deficiency shall be retained or dropped on the basis of EP's comments and documents shared if any. Rare circumstances में ऐसे भी होता है. लिस्ट ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर चुका हूँ लेकिन रेयर सर्कमस्टांसेस में बाज़-औक़ात इस किस्म का एविडेंस फर्म शेयर करती है which is not internally generated by the firm और ऐसी सिचुएशन में ऑल्दो इस ऐसी सिचुएशन में बाज़ औक़ात क्यूएबी से भी एडवाइस ले ली जाती है कि क्या ये सबमिशन लेटर स्टेज पे एक्सेप्टेबल है या नहीं है. If deficiency is retained, the reviewer needs to re-emphasize on the basis of requirement and EP comments. यानी ऑब्जर्वेशन अगर रिटेन कर ली गई है तो रिव्यूअर उसको री-एम्फसाइज करेगा, वजह बताएगा कि भाई ये मैं रिटेन क्यों कर रहा हूँ. The reviewer shall make all changes in track and shall write the reasons like justification for dropping all deficiencies if applicable. Finalization of a draft report. The reviewer shall submit draft report of the firm to head QAD within 1 working week of receipt of responses by the EP. The draft report reviewed by
head QAD shall be presented before QAB. Again, before this presentation, all necessary coding is performed so that there is no risk of biasness. Any disputes, disagreements between the reviewer and firm shall be resolved by the reviewer at first instance. In case of differing views between the reviewer and the firm, यहाँ पे फिर अगेन सीनियर्स का रोल आ जाता है। कोई कुछ अगर ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस किस्म के आ जाते हैं तो वहाँ पे, या कहीं डिफरिंग डिफरिंग व्यूज़ आ जाते हैं वहाँ पे, सीनियर्स जो हैं वो फिर इंगेज हो जाते हैं। The reviewer, after completing and submission of final report, shall participate in QAB meeting, where his reviewed audit engagement shall be part of agenda for QAB. She shall be responsible to address all the queries raised by the QAB members for conclusion of reviewed engagements. At times, yes, the seniors do play a role, but at times इस किस्म की queries भी आती हैं senior members की तरफ से कि let's say फलां चीज़ मौजूद थी documentation के दरमियान, so all those areas that are pertinent to facts वहाँ पे reviewer ही जवाब दे सकता है। So एट प्रेजेंटली हम रिव्यूअर को भी पार्टिसिपेट करवाते हैं इसमें। उसकी दूसरे साथियों के हवाले से भी एक लर्निंग एस्पेक्ट के हवाले से इस तरह की मीटिंग में पार्टिसिपेशन बड़ी उसके अपनी ग्रोथ के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। The reviewers shall strictly adhere to the timelines. Again, timelines are critical. एपलेट बोर्ड, जहाँ पे डिसीजंस अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं वहाँ पर फर्म को इमीडिएटली रिमूव नहीं किया जाता, बल्कि देयर इज़ अनदर फॉर्म एपलेट बोर्ड जहाँ पे केसेस रेफर होते हैं। एक टाइमलाइन है, एक टाइम पीरियड है जिसमें कि फर्म अप्लाई कर सकती है टू एपलेट बोर्ड in case of unsatisfactory QCR rating. In upcoming QCR framework, this concept has been further enhanced क्योंकि unsatisfactory rating of engagement partner के ऊपर भी cases appellate board पे refer हो रहे होंगे। The firm shall only be removed from QCR list only when appellate board upheld the QCR report, in other words, the decision of QAB. और ऑन रिमूवल क्यूओबी रिकमेंड्स टू एओबी टू डी रजिस्टर, यानी अगर कोई ऐसी फर्म है जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड में रजिस्टर है तो उसके क्यूसीआर रेटिंग के रिमूवल पे क्यूओबी रिकमेंड करती है एओबी को टू डी रजिस्टर द फर्म, और एओबी इशूज अ सर्कुलर कम्युनिकेटिंग द डी रजिस्ट्रेशन। एट टाइम्स जहाँ पे एपलेट बोर्ड में मैटर्स आते हैं, अगेन वहाँ पे रिव्यूअर की सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि अपील अगर फर्म फाइल करती है तो वहाँ पे कमेंट्स या रिस्पॉन्सेस की ड्राफ्टिंग में हम रिव्यूअर से सपोर्ट ले रहे होते हैं। ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इस पे कुछ सरसरी सी बात पहले हो चुकी है। इस हवाले से एसीसीपी एक कवरेज दे रहा होता है, और एओबी के कितने मेंबर्स हैं, सेवन मेंबर्स हैं। द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ एओबी आर अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द नॉमिनेटिंग कमेटी। और एओबी जो है वो क्यूएबी एंड क्यूएडी के टास्क को रिव्यू कर रहा है। After review of QAB and QAD's works, queries are raised at times by AOB. If those queries are pertinent to relevant reviewer, then again we seek support of the reviewer in sharing his comments on queries raised by AOB. In rare circumstances, the litigation is filed and affirms to file writ petition and challenge decision of appellate board and QB in the court. And on technical areas where the queries have been raised by the reviewer, even at those times, the reviewer support can be sought to draft replies on those legal cases. So the prerequisite for the reviewer or takeaway of all this presentation that was captioned as how to carry out QCR. I would say to effectively conduct a QCR, the reviewer must be thoroughly familiar with IFRSs, IFRS for SMEs, AFRS for SSCs, international accounting standards, international standards on ISAs, Companies Act, income tax ordinance. The directives are also important. Uh, Other applicable laws and regulations, if applicable. The knowledge of QCR framework and AUB regulations is also important. And it is not just the knowledge of above, but
Instead, the reviewer needs to keep himself updated with all the changes. So, lastly, I would say excellent communication, writing, and strong presentation skills are also a prerequisite for this role. So, with this, I conclude the presentation and move to Q&A. Although I included this as well, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि शायद बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट जैसे बताया कि मुश्किल मुश्किल रिक्वायरमेंट्स को करके इस फील्ड में भी एक्सेल किया जा सकता है, जैसे तोला साहब ने भी शेयर किया. सो आई वुड मूव टू Q&A. Does the reviewer perform procedures or just check whether they were performed? I mean, he just reviews the audit documentation, and then he reaches the conclusion कि क्या audit documentation मौजूद थी जिसके नतीजे में क्या ओपिनियन जो ऑडिटर ने एक्सप्रेस की है वो ओपिनियन दुरुस्त थी. क्वेश्चन है कि आर रिव्यूअर्स एक्सपेक्टेड टू हैव सेम proficiency as professional auditor? आई वुडंट से इट, बट टाइम के साथ साथ यस इस चीज़ को माइंड में रखें कि एक ऐसे इंडिविजुअल को क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका एक लंबा एक्सपीरियंस है प्रोफेशन में. सो रिव्यूअर की डोमेन में रहते हुए आप इन लॉज की अगर फेमिलियरिटी ले लेते हैं और टाइम के साथ साथ आपका एक एक्सपीरियंस बन जाता है, तो क्वेश्चन किया जा सकता है. क्वेश्चन कि क्या ये चीज़ें अलाइन हैं, इन लाइन विद लॉज हैं, इन लाइन विद IFRS हैं, इन लाइन विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं है. फ्रीक्वेंसी ऑफ QCR कंडक्ट ऑफ वेरियस फर्म्स, ये चीज़ लिखी हुई है QCR फ्रेमवर्क में. मैं बल्कि अब जो अपकमिंग फ्रेमवर्क है उसी की रिक्वायरमेंट बताऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल अब लेटेस्ट है. इसमें लार्ज साइज फर्म का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है. ऐसी फर्म जिसमें मोर देन 10 ऑडिट पार्टनर्स हों या जिसके पास मोर देन 50 PIC इंगेजमेंट्स हों, तो ऐसी फर्म को लार्ज साइज फर्म कह रहे हैं. और ऐसी फर्म का हर साल QCR होगा. सो लेकिन उनकी उनके पार्टनर्स की कवरेज जो है वो 3 इयर्स में करनी है. सो हर साल होगा लेकिन ओवरऑल 100% पार्टनर्स टू बी कवर्ड इन 3 इयर्स. ये है लार्ज साइज़ की फ्रीक्वेंसी. और फिर उसके बाद अदर देन लार्ज साइज़ में भी दो कैटेगरीज हैं, ऐसी जो PIC का ऑडिट कर रही हैं और ऐसी जो PIC का ऑडिट नहीं कर रही. जो PICs का ऑडिट कर रही हैं उनकी कवरेज जो है वो सारे पार्टनर्स की 4 इयर्स में है, और जो PICs नहीं कर रही हैं उनके सारे पार्टनर्स की 6 इयर्स में है. बट अगेन उसमें भी 3 इयर्स में एक विजिट रिक्वायर्ड है क्योंकि 50% मिनिमम कवरेज ऑफ पार्टनर्स नीड्स टू बी डन in 3 years and 2 years respectively. इसके बाद क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ QCR फर्म्स. QCR फर्म्स इस वक्त 127 है. ये लिस्ट अवेलेबल है ICAP की वेबसाइट पे. बल्कि ICAP की वेबसाइट भी एक अच्छा सोर्स है. वो लोग जो मालूमात बढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए ICAP की वेबसाइट पे क्वालिटी एश्योरेंस का एरिया आ रहा है और वहाँ पे QCR डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं. वो QCR डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पुरानी QAB रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं जिसमें कॉमन डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट की गई हैं. काउंसिल डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू QCR भी अवेलेबल हैं. इंगेजमेंट रिव्यू चेकलिस्ट भी अवेलेबल है. और सर्कुलर्स का भी के अलावा सिस्टम रिव्यू की भी इम्प्लीमेंटेशन गाइड और कंप्लायंस रिव्यू चेकलिस्ट भी अवेलेबल है. अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है कि द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एक्सप्रेस्ड अ क्वालिफाइड ओपिनियन वेयर एज आई थिंक द ओपिनियन शुड बी एडवर्स और डिस्क्लेमर.
अब लेकिन टेक्निकल ओपिनियंस के लिए तो आईकैप का टेक्निकल डिपार्टमेंट है, बट आई कैन शेयर माय व्यूज़ ऑन इट कि अ, जहाँ जहाँ पे ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स कैन हैव डिफरिंग ओपिनियन। अ, अगर आप ऑडिटर खुद ऑडिटर हैं तो आप एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे या डिस्क्लेमर एड्रेस करेंगे। और अगर अब ये बड़ा यूनिक सा है कि आपकी अपनी सिचुएशन क्या है कि कंपनी तो चाहेगी कि क्वालिफाइड ओपिनियन ही एक्सप्रेस होनी चाहिए, या फर्स्ट चांस पे उनकी ख्वाहिश होगी कि क्वालिफाइड भी ना हो बल्कि क्लीन रिपोर्ट हो। और जहाँ पे ओपिनियन एडवर्स या डिस्क्लेमर बनती है वहाँ पे बड़ा बाज़ों का ना थिन लाइंस आ जाती हैं। सो कंक्लूजन करते हुए ऑडिटर इस चीज़ को बड़ा केयरफुली असेस करता है कि क्या इम्पैक्ट परवेज़िव है या नहीं है। और अगेन इसमें बाज़ औक़ात डिफरिंग ओपिनियन भी आ सकते हैं। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है कि कंसर्न्ड फर्म्स के लिए एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि व्हाई नॉट अर्लियर इंटीमेशन शेयर्ड फॉर विद कंसर्न्ड फर्म्स फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन। फर्म्स जो क्यूसीआर रेटिंग में है उनको ऑलरेडी क्यूसीआर फ्रेमवर्क उनसे शेयर्ड है, और ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है जो कि आईकैप की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ये प्रैक्टिस के लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा शुरू में ही मैंने स्लाइड में शेयर किया कि जो ऐसे लोग जो फर्म्स के साथ एसोसिएटेड हैं उनको कन्फ्लिक्ट आने की वजह से फ्रेमवर्क में ही बाहर कर दिया गया है कि वो रिव्यूअर बन जाएं। मैं बल्कि वो एक दफ़ा दोबारा भी आप से रीड आउट कर देता हूँ, ताकि अगर कोई आपके ज़हन में इस हवाले से फर्दर क्यूरी है तो उस पे भी क्लैरिटी आ जाए। An individual hired by QAD to conduct QCR who has post qualification audit experience of at least 2 years, यानी 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑडिट एक्सपीरियंस चाहिए, and has not been in past employment of the firm for at least the past 2 years। यानी ये फर्म स्पेसिफिक है कि जिस फर्म पे रिव्यूअर को भेजा जा रहा है उस फर्म के पास्ट एम्प्लॉयमेंट में 2 साल ना रहा हो। और उसके बाद एंड ऑब्लिग और इज नॉट करंटली एसोसिएटेड विद एनी फर्म इन एनी कैपेसिटी। यानी एंड और इज नॉट करंट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसे भेजा जा रहा है वो किसी भी फर्म के साथ एसोसिएटेड ना हो। ये वो डेफिनेशन है जो कि क्यूसीआर फ्रेमवर्क 2024 में मौजूद है, विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर रिव्यू और पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑडिट एक्सपीरियंस। नहीं, पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑडिट एक्सपीरियंस इन क्यूसीआर रेटेड फर्म इज मैंडेटरी। नहीं, ये स्पेसिफिक क्योंकि फ्रेमवर्क में नहीं लिखा तो ये पोस्ट एलिजिबिलिटी जो फ्रेमवर्क में लिखी है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है। डेफिनेटली उसका एक एज ज़रूर मिल जाता है कि एक इंडिविजुअल ने अगर एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया हुआ है और एक टाइम गुजर चुका है उसको, और उसने अपनी चीज़ों को अपडेट कर लिया है, लॉज़ को, आईएफआरएस को, आइज़ा को, तो उसका एक अपडेट, एक बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। In case of non-compliance of QCR, is there any impact on auditor's report? देखें, ऑडिटर रिपोर्ट पे प्रेजेंटली मैं रिकॉल नहीं कर रहा कि कोई इस तरह की इम्प्लीकेशन नज़र आई हो, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ क्यूसीआर के नतीजे में ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड भी एक्शन ले रहा है, आईकैप में भी अगर इस तरह के कोई स्टेंसेस नज़र आते हैं कि अगर कोई फर्म जिसके पास क्यूसीआर रेटिंग नहीं है और वो पीआईसी का ऑडिट कर देती है या लार्ज साइज़ का ऑडिट कर देती है, तो उसको क्वेश्चन किया जाता है। For this external review certification members must have। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि फॉर दिस एक्सटर्नल रिव्यूअर सर्टिफिकेशन मेंबर मस्ट हैव 2 ईयर। नहीं,
मेरा आई बिलीव कि ऐसा नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि इस पे लाल साहब हो सकता है आपको बेहतर कमेंट शेयर कर सकें। मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल आंसर नहीं कर रहा। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है कि इफ अ फर्म ऑप्ट टू अपील, देखिए एपेलेट फॉर्म, फर्म स्पेसिफिक किसी ने क्वेश्चन किया, मैं वो भी अवॉइड करूंगा। ओवरऑल मैं एक जनरल गाइडलाइन ज़रूर दे सकता हूँ कि ऐसी फर्म्स जो अनसेटिस्फैक्ट्री होती हैं, एज ऑफ नाउ ऐसी फर्म्स के केस एपेलेट फॉरम में जाते हैं। और एपेलेट बोर्ड जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री क्यूसीआर रेटिंग को, ओवरऑल फर्म की रेटिंग को एज पर एग्जिस्टिंग क्यूसीआर फ्रेमवर्क एड्रेस करता है। नया फ्रेमवर्क जो कि क्यूसीआर फ्रेमवर्क 2024 है, उसमें इंगेजमेंट पार्टनर की रेटिंग भी अनसेटिस्फैक्ट्री हो सकती है और वो भी एपेलेट बोर्ड में जा सकता है। क्वेश्चंस मेरा ख्याल आना बंद हो गए हैं। मैंने कुछ एरिया रखा था, मैं चाह रहा था कि मैं एक नज़र ना चेकलिस्ट भी रिव्यू करवा दूँ। तो मुझे बस 1 मिनट आईटी से थोड़ी सपोर्ट चाहिए होगी इस हवाले से। मैंने कहता हूँ कि वो डिस्प्ले करने में मुझे सपोर्ट दे दें। मीनवाइल अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर करें, आई विल ट्राई टू आंसर। चाहिए मैंने आईएफआरएस फुल आईएफआरएस चेकलिस्ट डिस्प्ले की है। इसमें रिव्यूअर जो है वो डिफरेंट आईएफआरएसेस की टैब्स बनी हुई हैं जिनको फिल आउट कर रहा होता है ड्यूरिंग क्यूसीआर विजिट। इसमें येस नो नॉट एप्लीकेबल जो हैं उनको एड्रेस कर रहा होता है। देख रहे हैं नीचे डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं, जैसे IS2 में नज़र आ रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन माय हियरिंग। इफ़ येस तो ठीक है, इफ़ नो तो फिर रिव्यूअर ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ड्राफ्ट करके डालनी होती है। सो ये काफ़ी एक्सटेंसिव और कम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट है, जिसको कि रिव्यूअर आप नीचे टैब्स देख रहे होंगे। तमाम स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली ये सारी सिचुएशंस में एप्लीकेबल नहीं हो रहे होते। फिर लाइकवाइज फोर्थ शेड्यूल एंड फिफ्थ शेड्यूल की चेकलिस्ट हैं जिन्हें रिव्यूअर येस नो नॉट एप्लीकेबल करके फिल आउट कर रहा होता है। और जहाँ पे नो आ रहा होता है वहाँ ऑब्वियसली रिव्यूअर जो है उस कंप्लायंस के उस नॉन कंप्लायंस के ऊपर एक डेफिशिएंसी ड्राफ्ट कर रहा होता है। चेकलिस्ट अवेलेबल हैं आईएफआरएस के अलावा। अगर कोई मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ हैं तो उनकी भी चेकलिस्ट काफ़ी डिटेल में डिफरेंट सेक्शंस में उनकी रिक्वायरमेंट के हवाले से बनाई हुई हैं और उनको भी रिव्यूअर फिल आउट कर रहा होता है। येस नो या नॉट एप्लीकेबल वट एवर इज़ एप्लीकेबल वहाँ पे वो मेंशन कर रहा होता है। इसमें आईएफआरएस और एसएमईज में भी डिफरेंट एरियाज सेक्शंस बने हुए हैं। आईकैप की वेबसाइट पे ये डाउनलोड हो सकते हैं ओरिजिनल जो आईएफआरएस फॉर एसएमईज हैं और एएफआरएस फॉर एसएसईज। मीनवाइल एक और क्वेश्चन आया है कि इज देयर एनी टाइमलाइन टू कंप्लीट द रिव्यू। यस, हर फर्म का की एक टाइमलाइन है जो कि कन्वे की गई है। और वो जो क्यूसीआर लिस्ट है, लिस्ट ऑफ जो लिस्ट जो आईकैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है, अ, वहाँ वहाँ ये टाइमलाइन नज़र आ रही होती है। पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ। ये डाउनलोड फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कब और सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग असाइन हुई, कि उससे रेटिंग वैलिड कब तक है, और फर्म के नाम आ रहे हैं। 127 फर्म्स हैं जिनका के नाम मौजूद है। बल्कि ये मैंने आप लोगों से बात की थी, मैं आपको वर्बली ये एरिया दिखा भी देता हूँ कि आईकैप की वेबसाइट पे आके आप क्वालिटी एश्योरेंस के एरिया में आते हैं, वहाँ पे लिस्ट भी मौजूद हैं और आगे क्यूसीआर डॉक्यूमेंट्स में बड़ी कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स मौजूद हैं जिनका आप मुताला कर सकते हैं। इसमें क्यूबी रिपोर्ट्स का एरिया जो है वहाँ पे भी मुख्तलिफ ईयर वाइज रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इनमें एरियाज़ जो कि डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। और इसी तरह आईकैप की वेबसाइट पे क्यूसीआर डॉक्यूमेंट्स में इंगेजमेंट रिव्यू चेकलिस्ट भी मौजूद है।
ये वो चेकलिस्ट है जो क्यूसीआर फील्ड विजिट में रिव्यूअर फिल आउट कर रहा होता है। ये आइज़ा बेस्ड है। पूरा शुरू में उस पर्टिकुलर एंटिटी की डिटेल्स आ जाती हैं, नेम ऑफ रिव्यूअर, रिव्यू डेट, फिर एंटिटी, नेम ऑफ एंटिटी, ईयर एंड, थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड शेयर कैपिटल कितना है, फर्स्ट ईयर ऑडिट है। नीचे फिर स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं विच आर बेस्ड ऑन आइजाज टू सपोर्ट रिव्यूअर। ये इस फॉर्मेट में बनाई गई है कि उसको भी, जिस तरह हमने शुरू में शेयर किया कि अगर कोई फाइंडिंग है तो वो रेफर हो। इसके डिफरेंट एरियाज जो स्पेसिफाई किए हुए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस पे बात की हुई है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस रिक्वायरमेंट कौन से स्टैंडर्ड में है, और यस नो नॉट एप्लीकेबल, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइंडिंग, वर्क पेपर रेफरेंस, अगर ऑडिटर ने ये काम डॉक्यूमेंट किया है तो ये कहाँ डॉक्यूमेंट किया, उनके वर्किंग पेपर का रेफरेंस भी शामिल करना। सो मटीरियलिटी पे बात हो सकती है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, किसी ने चेकलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया, आई एम श्योर ये आंसर हो गया क्योंकि मैंने आई कैप की वेबसाइट का एरिया भी आपको दिखा दिया जहाँ ये चेकलिस्ट अवेलेबल हैं। असल में देखें, मैं समझता हूँ उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या ऑल चेकलिस्ट अवेलेबल हैं। तो सर्कमस्टांसेस और वैरायटी इंडस्ट्री की इस कदर ज़्यादा है कि वो 100% कवरेज नहीं हो सकती, और लेकिन स्टिल इट इज़ बेस्ड ऑन आइज़ा, तो बहुत हद तक ये एक कवरेज दे भी देती है। वो एस्पेक्ट्स जो किसी हद तक कवर नहीं हो रहे थे, उनको मैंने एक टिप्स फॉर द रिव्यूअर या पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बाय द रिव्यूअर, उसमें ऑलरेडी कवर कर दी है काफ़ी हद तक। बट ऑब्वियसली वो एक 100% नहीं हो सकती क्योंकि डेली बेस पे लॉज में चेंजेस आ रही हैं। अभी रिसेंटली थर्ड शेड्यूल में कुछ अर्सा पहले चेंज आई है, और स्टॉक ब्रोकरेज जो कि पीआईसी नहीं थे उनको पीआईसी की डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया है। सो अगेन वो टाइम के साथ साथ इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, नए स्टैंडर्ड्स आते चले जा रहे हैं, पुरानों में चेंजेस आती चली जा रही हैं, तो उनके साथ साथ मैं ये नहीं कह सकता कि 100% अपडेटेड है, बट हमारी टीम भी एफर्ट में रहती है कि इसको साथ साथ टाइम के साथ अपडेट करती रहे। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स के हवाले से किसी ने पूछा है कि क्या पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो, पार्टिसिपेंट्स के हवाले से किसी ने पूछा है कि सर्टिफिकेशन के हवाले से, रादर के क्या पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगा। आई थिंक ये जो टीम करवा रही है वो इस पे बेहतर जवाब दे सकेगी। टाइम लिमिट पे फिर, टाइम लिमिट टू कंप्लीट रिव्यू, टाइम लिमिट यूजुअली फील्ड विजिट का टाइम दिया जाता है, कि जो इंडिविजुअल विजिट कर रहा है उसको डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट टाइम दिया जाता है। अगर स्मॉल साइज एंटिटी है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2 से 3 दिनों में इसका फील्ड विजिट कंप्लीट हो जाएगा। अगर मीडियम साइज एंटिटी है तो 3 to 4 डेज में इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगर लार्ज साइज एंटिटी है या पीआईसी एंटिटी है तो क्यूएडी की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये 5 डेज में कंप्लीट हो जाए। बट रेयर सर्कमस्टांसेस में जहाँ कम्प्लेक्स इश्यूज नज़र आ रहे हों, या जहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आ रही हो, जहाँ पे सब्सिडरीज और एसोसिएट्स नज़र आ रही हों, बड़ा ग्रुप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो, वहाँ पे हेड या डायरेक्टर क्यूएडी के साथ लाइजनिंग करके रिव्यूअर को एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया जाता है ताकि क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। इज देयर एनी इम्पैक्ट? अच्छा, किसी ने पूछा नॉन कंप्लायंस ऑफ क्यूसीआर, अगर अगर किसी का देखें क्यूसीआर फेल हो गया है तो फ्यूचर में वो लार्ज साइज एंटिटीज और पीआईसीज के ऊपर
ऑडिट ओपिनियन नहीं दे सकता जब तक कि वो दोबारा क्यूसीआर रेटिंग अटेन ना कर ले। सो ये एक इम्पैक्ट फर्म के ऊपर आता है, और दैट्स व्हाई क्वालिटी रिटेन करना उनके फर्म्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अ, अ, इसमें क्वेश्चन किया है कि इज इट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एज आई कैप इज हायरिंग फॉर प्रैक्टिस रिव्यू। देखें, ये तोला साहब ने भी एक्सप्लेन किया, अशफाक तोला साहब ने भी, कि आईकैप कंसिडर कर रहा है ऐसा मॉडल जिसमें लोगों को मे बी वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन अगर निकल सके, या ऐसे लोग जो फुल टाइम एंगेज नहीं हो सकते लेकिन उनको पार्ट टाइम एंगेज किया जा सकता है। तो उस हवाले से ये सारी एफर्ट की जा रही है, ताकि लोगों को एक नो हाउ दी जाए कि ये ये प्रैक्टिस रिव्यू में क्या काम हो रहा होता है, या क्यूसीआर में कैसे काम किया जा रहा होता है, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, और उसकी बेस पे फिर लोग बेहतर डिसीजन ले सकें। अच्छा, देखिए, ये फ्रेमवर्क क्यूसीआर फ्रेमवर्क आईकैप जो है वो अडॉप्ट करता है, या आईकैप जो है जब इसको नोटिफाई करता है, तो ये ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड एक थर्ड पार्टी जो कि एसईसीपी एक्ट के अंडर बनी है, जिसपे मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया, उसके कंसेंसस से बनता है। ये आईकैप की अपनी डोमेन नहीं है। इस पे सिर्फ आईकैप सोलली डिसीजन नहीं ले रहा होता, और इसमें अगर कोई चेंजेस आ रही हों तो वो टाइम के साथ-साथ डिस्कस करके उनके उनके साथ डिस्कस करके आईकैप फाइनलाइज़ कर रहा होता है, और उनका फीडबैक भी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ क्यूसीआर लिस्ट में पुरानी डेट्स नज़र आ रही हैं। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो कुछ फर्म्स हैं जो कि लिस्ट में मौजूद हैं ड्यू टू लिटिगेशन, उनका और आईकैप की लिटिगेशन है, और कोर्ट डिसीजन की बेस पे और लीगल लीगल टीम की एडवाइस की बेस पे उनको रिटेन किया गया है। और रेयर सर्कमस्टांसेस में शायद कुछ ऐसी फर्म्स हुई हों जिनका टाइम ऊपर नज़र आ रहा हो, वो भी अशफाक तौला साहब ने भी जैसे बताया कि टाइम लैप्स इस वजह से हैं कि टीम जो है वो पूरी तरह मौजूद नहीं है। पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर गए हैं, और इवन कुछ की पाकिस्तान में भी जॉब्स हुई हैं, तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जिन लोगों के पास आ जाती हैं इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनके लिए बाहर की दुनिया भी है, और यहाँ पे भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। सेशन के हवाले से अगेन किसी ने पूछा है कि भाई ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, नहीं ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली एक इसके ऊपर आई कैप में भी बैक एंड पे एक थिंकिंग चल रही है कि रिव्यू का काम आउटसोर्स भी किया जा सकता है, और एक मे बी टाइम के साथ साथ कुछ लोगों को आई कैप अगर समझे तो आउटसोर्स करके एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे रन करे, और ये सारी एफर्ट उसी का एक प्रीएम्बल लग रही है। जी, दैट कवर्स माय प्रेजेंटेशन। क्वेश्चंस फर्दर नहीं आ रहे। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ ले, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अदरवाइज आई हैव कवर्ड।
अच्छा, इसमें एक पार्ट टाइम के हवाले से किसी का क्वेश्चन है कि पार्ट टाइम जो है काम किया जा सकता है। ये तो इंडिविजुअल के अपने ऊपर है कि वो खुद उसकी अपनी रूटीन क्या है, क्या वो मे बी 5 डेज कंसेक्टिव निकाल सकता है अपनी रूटीन से, उस उसमें मे बी कंसिडर कर सकता है। यूडीआईएन के हवाले से किसी ने सजेशन दी है कि यूडीआईएन के ऊपर इस किस्म का कंट्रोल लगा हो कि जब वो फिगर्स डालें तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑटोमेटिकली, अगर एक फर्म जो नॉन क्यूसीआर रेटेड फर्म है, इट शुड नॉट बी एबल टू जनरेट यूडीआईएन ऑफ ए कंपनी। बड़ी वैलिड सजेशन है, ये हम आगे पास ऑन भी कर देंगे रिलेवेंट डोमेन को। जी, इस एक क्वेश्चन और आया है कि डू वी रिक्वायर पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑडिट एक्सपीरियंस फॉर द एक्सटर्नल रिव्यू। एक्सटर्नल रिव्यू से अगर आप क्यूसीआर की डोमेन समझ रहे हैं तो यस, फ्रेमवर्क में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि 2 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑडिट एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑडिट एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years। और फ्रेमवर्क की क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो यस, क्यूसीआर के लिए ये रिक्वायरमेंट है। जी, नो मोर क्वेश्चंस, आई थिंक आई हैव कवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।